Okay, so chapter number 10, tax invoice, credit and debit notes. So basically, in this chapter, we are going to discuss about different documents which we are required to issue under GST. Okay. So basic thing, I think that we have discussed in chapter number टाइम ऑफ सप्लाई जब डिस्कस किया था तब सेक्शन 31 का रेफरेंस लिया था हमने कि इनवॉइस हमें कब इशू करना पड़ता है. ओके, सो टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट में बेसिकली वी आर डिस्कसिंग विद सेक्शन 31 टू सेक्शन 34, जिसमें मुझे इनवॉइस इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है जीएसटी में. इसके बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so at which scenario what document you have to issue, when we can issue, all that provisions are here. Okay. So tax invoice, credit and debit notes. What is invoice? Invoice मतलब it is receipt. Okay. और कुछ invoice क्या होता है? ना, correct. Please bring out. It is a proof that transaction has taken place. Okay. What are the different details which are mentioned in the invoice? Okay. Name किसका? सप्लायर का नाम, रिसिपिएंट का नाम, गुड्स सर्विस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका एचएसएन कोड लिखा हुआ रहता है. तो ये सब जो प्रोविजन है वो जीएसटी लॉ में दिए गए. तो बेसिकली इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट. ओके, सप्लायर रिसिपिएंट को नॉर्मली इनवॉइस इशू करता है. जीएसटी में एक स्पेशल कैटेगरी है, इसमें सप्लायर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है. वन टिपिकल केस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, इन बेसिकली इसमें क्या है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, कौन से गुड्स सेल हो गया, सर्विस सप्लाई हो गया, इसमें टैक्स कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, पेमेंट टर्म पे, सब चीजें उस डॉक्यूमेंट पे डिफाइन की हुई रहती है, फिर मेंशन की हुई रहती है. ओके, एंड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट दिस documentation, this tax invoice plays a very crucial part. See, when I am using the invoice ना, त्याच्यामध्ये सगळं इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सब इंक्लूड हो गया है. ठीक है, so it is very crucial. Why it is a crucial aspect? First of all, suppose I am your supplier and you are buying something from me. Okay, and 100 रुपीज का आइटम वैल्यू है, आप 18 रुपए ज्यादा मुझे पे कर रहे हो फॉर जीएसटी. यू शुड हैव प्रूफ के यू हैव पेड जीएसटी टू मी, राइट? So what is the proof? That invoice is a proof. Okay, ki you have paid that it is received at GST. Okay. Second thing is that you must have proof what are the goods or services which you have purchased. Similarly, as a supplier, I should have details which are the goods which I have sold. What is the computation? So basically, it is the evidence of the transaction between supplier and recipient. Again, then on next Saturday we will discuss on ITC, input tax credit. In that chapter, we will see that unless and until you possess an invoice with you, you are not eligible for input tax credit. So for claiming input tax credit also, invoice is a must document for you. Okay, therefore overall this is a document. जब transaction दो पार्टीज के बीच में हुआ है, इसका proof क्या है? ये invoice. Okay, so everything under GST comes at the invoice level. इनवॉइस से ही प्रूव होता है कि आपने किसको कुछ क्या बेचा है, आपने क्या खरीद बेचा है. तो इसके लिए इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. Total GST section 31 to section 34. Okay, these four sections are dealing with this tax invoice, debit note and credit note. Then rule 46 to 55A. There are some, you have to, we will have reference with some rules also. बाकी सब चैप्टर में हमने कुछ सेक्शन डिस्कस किया, रूल्स का पार्ट नहीं था. यहाँ पे कुछ रूल्स भी हमको गो थ्रू करने हैं. ओके, एंड इसी से रिलेटिंग ई-वे बिल करके टॉपिक है 12th. लास्ट टाइम परमिट विल ट्राई टू डिस्कस, अदरवाइज हम वो नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे. तो ये ई-वे बिल ये रिलेटेड टॉपिक है एक दूसरे का. ओके, so we will start discussion about invoicing. Okay, so basically section 31 of GST Act deals with, again place of supply में हम IGST में थे, रजिस्ट्रेशन में फिर से GST में आ जाए, और we will continue on GST Act only. Okay, section 31 issue of invoice for supplier goods. ये कहीं से भी स्लाइड लिखा हुआ लगता है क्या? पेज से तो ये डिस्कस किया है, सेम स्लाइड डिस्कस, टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया है, राइट? टाइम ऑफ सप्लाई में प्रोविजन थे. In case of goods, time of supply is date of issue of invoice under section 31 or the last date up to which invoice is required to be issued under section 31.
उस टाइम पे गुड्स के केस में हमने कब इनवॉइस कैसे इशू करना है ये सब प्रोविजन हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, जस्ट रिपीटेशन, तो उसमें ज्यादा डिस्कशन में हम टाइम नहीं लेते। जस्ट देखो ऑर्डिनरी केस में कब इनवॉइस इशू करना है, गुड्स के केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले इशू करो, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो गुड्स जब आप डिलीवर करते हो उस टाइम पे इशू करो। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर सक्सेसिव पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है तो वो सक्सेसिव पेमेंट सेटलमेंट के डेट के टाइम पे आपको इनवॉइस देना है, अदरवाइज जब आपको पैसे मिलते हैं तब देना है। एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अगर रहेगा तो देन एक्चुअल सप्लाई हैपेंस एट दैट टाइम और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। ओके, उस डेट तक आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। ये कौन से केस में है, गुड्स के केस में है। अगर आप सर्विस के केस में देखोगे तो सर्विस प्रोवाइड होने के बाद 30 डेज तक का टाइम लिमिट आपके पास है फॉर इशूइंग योर इनवॉइस फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। बट इफ योर बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी, then you have bank, not insurance company, bank or financial institution or NBFC, then you have time limit of 45 days for issuing invoice after provision of service, right? Then in case of continuous supply, 3 situations के service के case में, first one is if due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice should be issued on or before that due date, right? If due date of payment is not ascertainable from the contract, then the invoice should be issued when you receive the payment. And if if payment is linked to completion of an event, okay, then invoice should be issued before at the time of completion of that event in case of continuous supply. And supply ceases under contract before completion of supply, तो जब supply cease हो जाएगा उस टाइम तक जितना काम किया है उतना एक आपको इनवॉइस इशू करना है। तो ऑलरेडी हमने टाइम ऑफ सप्लाई में डिटेल में ये सब डिस्कस किया है। ओके, तो जस्ट हमने टच अपॉन किया। अब बाकी के जो इनवॉइसिंग के बारे में प्रोविजंस है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, ओके, दैट वी विल नाउ डिस्कस। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलना है, सर्विस किसको बोलना है, अगेन ये डिस्कस हो चुका है उस टाइम पे ना। तो गैस का एग्जांपल देखा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखा था। कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक वो सर्विस आपको या गुड्स आपको सप्लाई होते रहते। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज रूल 46, व्हाट आर द पर्टिकुलर ऑफ टैक्स इनवॉइस। जीएसटी में आप जब टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, देखो ऐसा है कि टैक्स इनवॉइस बोले तो वेर एवर यू कलेक्ट टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द कस्टमर, ओके, 100 रुपए का गुड्स और 18 रुपए जीएसटी सेपरेटली आप जब लेते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू इशू टैक्स इनवॉइस। नाम ही ऐसा है कि टैक्स इनवॉइस बोले तो whenever you are collecting tax separately at that time you have to issue tax invoice. रूल 46 बोलता है कि टैक्स इनवॉइस में कौन से डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। स्पेसिफिकली फर्स्ट वन, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ द सप्लायर। ओके, सप्लायर का नाम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर आपको मेंशन करो। देन अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज containing alphabet, numerals, special characters, hyphen or dash and slash, and any combination thereof unique for a financial year. Second, तो पॉइंट बोलता है रिगार्डिंग योर इनवॉइस नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवॉइस का नंबर होना जरूरी है। ठीक है, वो नंबर कैसा हो सकता है, वो होना चाहिए कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, ऐसा ही होना चाहिए। आज एक का इनवॉइस इशू किया, उसके बाद 100 नंबर का किया, उसके बाद 5 का किया, नहीं चाहिए। ओके, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर आपका होना जरूरी है। और ये जो आपका इनवॉइस नंबर है इसमें आपके नंबर्स और अल्फाबेट दोनों परमिटेड है, स्पेशल कैरेक्टर भी परमिटेड है। कौन से, डैश और स्लैश, ये दो ही, हाइफन और डैश एंड स्लैश। स्लैश मतलब ऐसा वाला, उल्टा वाला नहीं, दो स्लैश रहते हैं ना कीबोर्ड पे, मतलब वो सीधा वाला स्लैश है वो। ये दो ही स्पेशल कैरेक्टर्स आपको परमिटेड है। अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी चल सकता है, लेटर्स भी यूज कर सकते हो और नंबर पे करने ही पड़ेगी। लेकिन इसका ऐसा कि ये इनवॉइस नंबर आपका 16 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना। उससे ज्यादा इनवॉइस नंबर नहीं, मतलब 17 कैरेक्टर्स का जीएसटी नंबर इज नॉट अलाउड। ओके, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का हो सकता है। एंड एनी कॉम्बिनेशन यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक नंबर का इनवॉइस 1 अप्रैल को इशू करता हूँ तो 31 मार्च तक मेरा एक नंबर का इनवॉइस फिर से इशू नहीं होना चाहिए, यूनिक फॉर फाइनेंशियल। लेकिन इतना है कि इन वन और मल्टीपल सीरीज आपकी इनवॉइस सीरीज अलग अलग हो सकती है। ओके, इनवॉइस सीरीज अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मान लो सपोज मेरा एक शोरूम ये है वो कोथरूड में है। ओके, तो आई कैन इशू K-1, K-2, K-3। दूसरा शोरूम मेरा स्वारगेट में है, मेरा ही जीएसटी नंबर के अंडर,
So I can be S.1, S.2 और S/1. ओके, तो इनवॉइस की सीरीज मल्टीपल हो सकते हैं. देखिए, जो कुछ नंबर रहेगा उस सब में आपको ये 16 कैरेक्टर्स, अल्फान्यूमेरिक, डैश स्लैश एंड कंसेक्यूटिव नंबरिंग, ये सब जो है वो आपको फॉलो करना है. ठीक है. थर्ड वन, डेट ऑफ इशू. इनवॉइस के इशू की डेट ये आपको वहाँ पे मेंशन करनी है. If recipient is registered, then name, address, GSTN और UIN of the recipient. आपका जो कस्टमर है, रिसिपिएंट, वो अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर, या फिर अगर यूनो वाला रहेगा तो यूआईएन नंबर, ओके, एंड उसका एड्रेस आपको इनवॉइस पे मेंशन करना मैंडेटरी. ठीक है. इफ रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड and value of supply is 50,000 or more, name, address of the recipient and the address of delivery along with the name of the state and its school. अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सप्लाई कर रहे हो और उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा है, अंडरस्टूड. ओके, यूआरडी बोले तो अनरजिस्टर्ड. कॉमन लैंग्वेज में यूआरडी. अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सेल कर या सर्विस सेल कर रहे हो और उसका वैल्यू 60,000 से ज्यादा है, तो उसमें आपको वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी नाम और उसका एड्रेस ये सब लिखना है. इसका स्टेट कोड क्या है? स्टेट कोड बोले तो 27, 29, 24, जो हमने हर एक स्टेट का कोड मैंने बोला था. महाराष्ट्र का 27, गुजरात का 24, वो आपको इसमें लिखना है. देखो, 50,000 से कम अमाउंट का अगर इनवॉइस हो रहेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपने उसका नाम, एड्रेस वगैरह नहीं लिखा तो चल सकता है. B2B में आपको ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर 1 रुपए का भी इनवॉइस निकालो, डिटेल होना जरूरी है. अनरजिस्टर्ड के लिए 50,000 से ऊपर वैल्यू है तो ये सब मेंशन करना है, अदरवाइज नो नीड. HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज. ऐसे HSN इट इंप्लाइज की SAC ऑल्सो फॉर सर्विसेज. ओके, तो HSN कोड और सर्विस के लिए SAC कोड आपको मेंशन करना है. डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज क्या है मेंशन करना है. क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड यूनिक क्वांटिटी कोड. क्वांटिटी मतलब 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर इट इज, एंड यूनिक क्वांटिटी कोड किलोग्राम्स, लीटर्स, नंबर्स, यूनिट्स, व्हाटएवर जो होता है वो उस पर मेंशन करना है. टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ओके, देन टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल बोले तो 118 टैक्स, टोटल वैल्यू भी 118, टैक्सेबल वैल्यू भी 100 एंड टैक्स अमाउंट भी 18. वो सेपरेटली आपको इनवॉइस में दिखाना पड़ता है. एक अगर आप इनवॉइस लेते हो तो ये डिटेल चेक करो है कि नहीं. ओके, तो ये सब मेंशन करना है. रेट ऑफ टैक्स, जिसमें रेट से 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो आपका वो रेट क्या है? रेट मतलब ऐसा अगर CGST है तो 14% प्लस 14%, 9% प्लस 9%, तो सेपरेटली आपको दिखाना पड़ता है. तो रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स दोनों आपको उसमें इनवॉइस में मेंशन करना है. ओके, इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद नेम ऑफ स्टेट इन केस ऑफ इंटरस्टेट. इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में आता है वो स्टेट का नेम भी आपको मेंशन करना है. ओके, देन व्हाट इज द एड्रेस फॉर डिलीवरी. सो बिलिंग का एड्रेस तो ऊपर आ गया 4 नंबर में. ओके, और डिलीवरी का एड्रेस क्या है ये भी आपको मेंशन करना है. वेदर द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ओके, अगर आरसीएम अप्लाई होता है आपके ट्रांजैक्शन पे तो आपको रिवर्स पे लिखना पड़ेगा कि टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन इज पेड बाय रिवर्स अंडर रिवर्स चार्ज. तो रिसिपिएंट को पता होना चाहिए ना कि उसको टैक्स भरना है उसके ऊपर. दैट यू हैव टू मेंशन. एंड सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिसिपिएंट, आपका साइन होना चाहिए. ओके, डिजिटली साइन होना चाहिए. ओके, so these are the 16 particulars which are mandatory to be mentioned on the invoice. See, under GST law, nowhere format of invoice is restricted. Format you can आपके खुद के टेस्ट के हिसाब से कैसा भी डिजाइन करो, कौन से भी कलर का पेपर लो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन इसमें ये 16 ये जो डिटेल्स है, ये आर द मिनिमम डिटेल्स विच यू हैव टू मेंशन. इससे ज्यादा और कुछ आपको मेंशन करना है, यू आर अलाउड, नो प्रॉब्लम. इनकी 16 में से कुछ कट नहीं करना है. These 16 are the minimum requirement. It is mandatory to mention all these documents on, all these details on the invoice. सिंपल है ये. आपको ये मैंने डिटेल में क्यों डिस्कस किया, ये सिर्फ ये सभी 7-8 बार रिपीट होने वाला है. ओके, यू अंडरस्टूड. ठीक है, अब देखो इसमें ये जो HSN कोड मेंशन करना है, इसके लिए ऐसा प्रोविजन है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ है, ठीक है, करंट ईयर में मुझे कितने डिजिट का HSN मेंशन करना है, इट डिपेंड्स ऑन माय प्रीसीडिंग ईयर्स टर्नओवर. ओके, सो अगर मुझे 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कितने डिजिट का HSN मेंशन करना है, इट डिपेंड्स ऑन माय टर्नओवर फॉर 23-24. ओके, अंडरस्टूड.
तो देखो, अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ और लेस, तो मुझे करंट ईयर में मैंने जो B2B सप्लाई है, व्हाट इज B2B सप्लाई, मतलब क्या है B2B? Customer is also GST registered. Okay. In case of B2B supplies, I have to mandatorily mention 4 digit HSN. कितना डिजिट? 4 डिजिट। 8 डिजिट का रहता है टोटल, उसमें से 4 मतलब लास्ट के 4 नहीं, पहले से। ठीक है, तो 4 डिजिट HSN मेंशन करना मैंडेटरी है ऑन B2B इनवॉइस में, और B2C ऑप्शनल है, मैं मगर मुझे चाहता है तो मैं मेंशन कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। ओके, लेकिन अगर मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है, मुझे 5 करोड़ से मेरा ऊपर टर्नओवर है, तो मुझे क्या करना है, ऑल द इनवॉइसेस B2B या B2C कुछ भी हो, सभी इनवॉइसेस पे मुझे 6 डिजिट एक्सपेंस मेंशन करना मैंडेटरी। ओके, देखो 5 करोड़ से छोटा है तो सिर्फ B2B पे, और वो भी 4 डिजिट, B2C पे नहीं किया तो चलता है, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर है तो सभी इनवॉइसेस पे 6 डिजिट एक्सपेंस करना मेंशन। अब देखो, दिस प्रोविजन आल्सो अप्लाइज टू बिल ऑफ सप्लाई। इट मींस कि इनवॉइस के अलावा और 5-6 प्रकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उस डिस्कशन में जहां जहां पे भी HSN कोड मेंशन करना है, ऐसा आता है, और सभी जगह पे यही प्रोविजन एप्लीकेबल है, 4 डिजिट या 6 डिजिट। यदि 8 डिजिट HSN GST में ये नहीं होता। ये देखो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगेन आपको 4 डिजिट मेंशन करना है, आपने 8 डिजिट कर दिया, नो प्रॉब्लम, 4 से कम नहीं करते। तो दिस इज रिगार्डिंग HSN कोड। नाउ व्हेन यू हैव टू इशू द इनवॉइस, उसका मैनर रूल 48 में ऐसा बोला है कि अगर आप गुड्स के लिए इनवॉइस इशू कर रहे हो तो आपको ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस इशू करना है। 3 कॉपीज निकालने हैं। ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के पास जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी, और ट्रिप्लीकेट मेरे सप्लायर के खुद के रिकॉर्ड में रहेगी। लेकिन अगर आप सर्विस के लिए कर रहे हो तो डुप्लीकेट, क्योंकि सर्विस केस में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ना आपका, तो ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के लिए, डुप्लीकेट कॉपी मेरे लिए, सप्लायर के लिए। ऐसा आपको इनवॉइस क्या करना है, उसमें करना है, मैनर ऑफ इशूइंग। नाउ अब देखो, यहाँ पर कुछ केस में इनवॉइस इशू करने से एग्जम्पशन भी दिया हुआ है। देखो, एज अ क्या बोलते हैं हम उसको, आपको ये सब पता है, तो कभी भी आप किसी भी शॉप में जाते हो ना, यू शुड इंसिस्ट फॉर इनवॉइस। ठीक है, तो यू शुड इंसिस्ट फॉर इनवॉइस एंड यू शुड इंसिस्ट फॉर डिजिटल पेमेंट। क्योंकि क्या होता है, लोग ऐसा है कि विदाउट बिल आपको माल दे देते हैं, आपके GST कलेक्ट भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भरते नहीं है। तो कैश ट्रांजेक्शन में ये इजी हो जाता है, इसलिए आप अगर बिल पे इंसिस्ट करोगे या फिर आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक केस में इनवॉइस इशू करने से एग्जम्पशन दिया है। कौन से केस में देखो, रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ, 3 कंडीशन, तीनों के तीनों फुलफिल होना जरूरी है। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होते तो आप इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो चलता है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड सर्विस बोथ सप्लाइड आर लेस देन 200, ये 200 रुपए से कम वैल्यू है। रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रिसिपेंट कैसा होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड द रिसिपेंट डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस, अगर उसने डिमांड किया तो आपको देना पड़ेगा। ओके, देखो 200 रुपए से कम वैल्यू है, रजिस्टर्ड नहीं है मेरा कस्टमर, और ही डजंट आस्क फॉर द इनवॉइस, इन if all the 3 conditions are fulfilled, then you are exempted from issuing invoice, but instead such registered person shall issue a consolidated tax invoice for each such supply made at the close of day in respect of future। इसका मतलब कहना है कि मेरे कस्टमर में काउंटर में मान लो 100 लोग आ गए दिन भर में, और उन्होंने 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए का तो माल परचेज किया, बिल किसी ने भी मांगा नहीं, कुछ नहीं, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, वो अनरजिस्टर्ड है, 200 रुपए से कम वैल्यू दे, और उसने इनवॉइस डिमांड नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे अगर 100 कस्टमर्स आते हैं तो हर एक को मैंने इनवॉइस नहीं दिया तो चलता है। एग्जाम का मतलब इनवॉइस इशू ही ना करो ऐसा नहीं है। ओके, हर एक कस्टमर को इनवॉइस इशू नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ट्रांजेक्शन जो आपने पूरे दिन में किया है उसका एग्रीगेट मिलके जो वैल्यू है उसका एक इनवॉइस एक डे के लिए आप इशू करो, मतलब उसका रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। कहाँ पे, जहाँ पे मतलब काउंटर सेल का ये जो है ना, उस जगह पे ये बहुत फायदेमंद रहता है, लेकिन 200 रुपए ये वैल्यू इतना कम है, फिर भी आप 2-4 आइटम्स भी ले लो, 200 रुपए कैसे भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कि हमने एकदम से नहीं दिया ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो है।
हाँ, that's why you should insist for bill. That's what I'm saying. नाही, they cannot be. They cannot be. मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परत घ्यायचं नाही असं नाही करताय. They have to गुड्स अगर डिफेक्टिव है तो उनको वापस लेना ही पड़ेगा. They can do, depends. There is no specific rule एक्सेप्ट, लेकिन वो रिटर्न नहीं करना है ऐसा नहीं होता. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर डिफेक्टिव गुड्स है तो उनको रिटर्न देना ही पड़ेगा. तो ये लॉ में प्रोविजन है, लेकिन यू शुड, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, यू हैव टू इंसिस्ट फॉर लीव. ओके, तो एग्जम्पशन फ्रॉम इंश्योर एक्शन. नाउ देयर आर सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन कि जिनके लिए ये इनवॉइस इशू, इनवॉइस के जो अभी हमने देखा ना 16 टाइप के डिफरेंट डिटेल्स आपको मेंशन करना है, उनमें से कुछ कुछ इसमें उनको एग्जम्पशन दिया है और कुछ एडिशनल डिटेल मेंशन को ऐसा भी बोलना है. स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन. ओके, तो सपोज देयर इज अ इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ये अगर लोग रहते हैं तो उनके इनवॉइस पे सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है. ओके, क्योंकि ऐसे ये ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं. फ्रॉड ऐसा कुछ हो, नॉर्मल केस में नहीं हो सकता है. सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है और कस्टमर का एड्रेस भी मैंडेटरी नहीं है. ये छोड़ के बाकी सब डिटेल्स मेंशन करने हैं. ठीक है, सिर्फ दो फील्ड में से एग्जम्पशन उनको दिया है, उसको इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी. ठीक है, इफ देयर इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, जीटीए, तो उसके लिए ऑप्शनल फीस कुछ भी नहीं है. वो 16 टाइप के डिटेल्स मेंशन करना ही है. इन एडिशन टू दैट देयर आर अनदर 7 डिटेल्स व्हिच दे हैव टू एडिशनली मेंशन. कौन से? ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनर, ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसका वेट कितना है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, जिस व्हीकल से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसका व्हीकल नंबर आपको देना है, गुड्स कौन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका डिटेल, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, जो पर्सन उसके ऊपर जीएसटी भरने वाला है उसका जीएसटी नंबर. मतलब जीटी के केस में नॉर्मली रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा तो रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन रूल 25 दैट 16 प्लस दिस 6 टोटल 22 टाइप के डिफरेंट डिटेल्स इनको मेंशन करने हैं. एंड इफ देयर इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब जो प्राइवेट बस या फिर एसटी बस से जो हम ट्रैवल करते हैं, ओके, उनके केस में ऐसा है कि उनका भी सर्विस जीएसटी के लायबल है. कोई भी आप शिवनेरी से ट्रैवल करो, ऐसे ट्रैवल करो, तो प्रॉपर इनवॉइस देता है क्या? नहीं देता है ना, तो उनको एग्जम्पशन है. इनके लिए भी सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म बाय व्हाटएवर नेम कॉल, तो जो भी वो टिकट आपको देंगे वही इनवॉइस है, ऐसा बिल्कुल. ठीक है, तो ये स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए सिर्फ इतने एग्जाम्पशन उन्होंने दिए हैं. अंडरस्टूड? देन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस. इसे क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड इनवॉइस. ये रिवाइज इनवॉइस के बारे में डिस्कस करने के पहले हमको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में डिस्कस की, इसका रेफरेंस यहाँ पे लेना जरूरी है. ओके, क्या थी इफेक्टिव डेट की प्रोविजन बताओ. सपोज दैट देखो, जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता हूँ, ठीक है, लायबल होने के बाद अगर मैं विद इन 30 डेज अप्लाई करता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मुझे जब मैं लायबल होता हूँ उस डेट से रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. अगर मैं आफ्टर अप्लाई करता हूँ 30 डेज को, जब मुझे आरसी ग्रांट होगी उस दिन से इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन मुझे मिल जाता है. ओके, अब जो लेट कमर्स है उनके लिए जीएसटी में कुछ ये नहीं है. ये जो प्रोविजन है वो इन लोगों के लिए जो विद इन 30 डेज अप्लाई करते हैं रिवाइज इनवॉइस के लिए. अब देखो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. देखो, ऐसा है कि मैं 16 मार्च को टर्नओवर मेरा एक्सीड हो गया 40 करोड़ नहीं 40 लाख 40 लाख. आज मैंने 5th ऑफ अप्रैल को अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज, और मुझे आरसी कब ग्रांट हुआ? 10th ऑफ अप्रैल को ग्रांट विथ इफेक्ट फ्रॉम 16th ऑफ मार्च. ओके, ये सिचुएशन विजुअलाइज हो सकता है. अब इसमें देखो ऐसा है, आई एम लायबल फॉर कलेक्टिंग जीएसटी फ्रॉम 16th ऑफ मार्च. इफ माय रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 16th ऑफ मार्च, 16th मार्च से जो भी मैं सप्लाई करूंगा इस हर सप्लाई के लिए इनके टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, राइट? लेकिन 10 अप्रैल तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जीएसटी नंबर क्या है, राइट? तो अगर मेरा जीएसटी नंबर मुझे पता ही नहीं था, तो 10 अप्रैल से
10 अप्रैल के पहले मैं कैसे इनवॉइस इशू करूंगा? लेकिन सप्लाई तो मैंने ऑलरेडी किया है, जिसके ऊपर मैं जीएसटी भरने के लिए लायबल हूँ। तो इन सब लोगों के लिए ये रिवाइज इनवॉइस का प्रोविजन है। तो प्रोविजन ऐसे बोलता है, पहले वो लीगल वर्डिंग छोड़ दो, ये समझ में आ गया क्या हुआ? तो मुझे 10 अप्रैल को ही मेरा जीएसटी नंबर पता चलेगा, उसके बाद ही मैं इनवॉइस इशू कर पाऊंगा। तो ये प्रोविजन ऐसे बोलता है कि देखो, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लायबल हो जाते हैं और आपको आरसी, आप विद इन 30 डेज अप्लाई करते हो, आपको आरसी ग्रांट हो जाता है, ये बैंक देते इफेक्टिव। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप लायबल जब हो गए उस डेट से, जब आपको आरसी ग्रांट हुआ, ये जो इंटरवेनिंग पीरियड है, ये इंटरवेनिंग पीरियड में आपने जो सप्लाई किया है उसके लिए आप रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो। ओके, इसके लिए आप क्या दे सकते हो? रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम में मैंने जो सप्लाई किया है इस पे मेरा जीएसटी नंबर नहीं है, मैंने मतलब डिटेल्स पूरे के पूरे नहीं रहेंगे ना। तो विद इन दैट इंटरवेनिंग पीरियड व्हाट एवर सप्लाई यू हैव मेड, यू कैन इशू रिवाइज इनवॉइस फॉर दोज सप्लाई। कब? आपको आरसी ग्रांट होने के बाद के 30 दिन, मतलब 10 अप्रैल को अगर मुझे आरसी ग्रांट होता है तो 16 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में मैंने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसका रिवाइज इनवॉइस में 10 मई तक इशू कर सकता है, नेक्स्ट 30 डेज में। देखो क्रोनोलॉजी समझ में आ गई क्या होता है? अब हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो आपको अंदर देखो, रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 10th अप्रैल, okay, and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration. तो आ गया, मतलब 16 मार्च से 10 अप्रैल तक मैंने जो ऑलरेडी इनवॉइस इशू किए हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके आरसी ग्रांट होने के डेट तक, वो बीच के पीरियड में जो मैंने इनवॉइस इशू की है उससे अगेंस्ट में रिवाइज इनवॉइस दे सकता हूँ। कब? आरसी ग्रांट होने के बाद के 30 दिन में। 10th मार्च को, सॉरी 10th अप्रैल को मुझे आरसी ग्रांट हुआ, तो आई कैन इशू इनवॉइसेस अप टू 10th मई। समझ गया प्रोविजन? देखो ये क्यों प्रोविजन आता है, क्योंकि मेरा आरसी बाद के डेट में मिलता है और इफेक्टिव डेट पीछे वाली। अगर मैं 30 दिन के बाद अप्लाई करता हूँ तो ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक ही आरसी का डेट से ही मुझे इफेक्टिव डेट मिल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आरसी आज की है लेकिन पीछे के डेट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। ओके, तो इंस्टीट्यूट को ये बहुत, मतलब दे आर इन लव विद दिस क्वेश्चन, बहुत सारे टाइम पूछा है। XYZ बंदा है, इस पर्टिकुलर डेट को वो इसका नंबर एक्सीड हो गया, इसने इस डेट को एप्लीकेशन किया, इस डेट को आरसी ग्रांट हुआ, तो वो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता है। बहुत टाइम है प्रोविजन देता है। ओके, तो आपको पहले क्या देखना है? सबसे पहले वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन कर रहा है, राइट? अगर उसने किया है तो फिर ये आप रिवाइज इनवॉइस का प्रोविजन उसको बेनिफिट मिल सकता है। अंडरस्टूड? अब इसमें एक थोड़ा ऐसा है कि मान लो कि मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओके, उसके केस में ऐसा हुआ है कि ये हमारा ए जो है वो 16 मार्च को एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 5 अप्रैल को अप्लाई करता है, 10 अप्रैल को आरसी ग्रांट होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च। और अब उसको अब क्या करना है? अगले 30 दिन में, मतलब 10 अप्रैल के बाद के 30 दिन में रिवाइज इनवॉइस देना है, जो भी सप्लाई उसने 16 मार्च से 10 अप्रैल तक की है उस सप्लाई के लिए। अब मान लो ऐसा कि बी नाम का मेरा एक कस्टमर है, ओके, तो बी नाम का मेरा कस्टमर क्या करता है कि उसने 16 मार्च से 10 अप्रैल का जो पीरियड है इंटरवेनिंग पीरियड, उस पीरियड में मेरे दुकान से 10 बार माल परचेज की, ओके। तो ये प्रोविजन ऐसा बोलता है कि अगर उसने ऐसा 10 बार माल परचेज किया है और वो मिस्टर बी वो अनरजिस्टर्ड है, ओके, बी क्या है? अनरजिस्टर्ड, तो आप क्या कर सकते हो? आपको एक ऐसा बेनिफिट अवेलेबल है कि जो 10 बार उसने माल लिया है इसलिए 10 इनवॉइस इशू करने की जगह उसका एक ही कंसोलिडेटेड इनवॉइस का एक्सप्लेनेशन दे दो। समझ गया? अंडरस्टूड? ओके, देखो, a registered person may issue a consolidated tax invoice, consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to an unregistered recipient during the period. समझ में आ गया?
देखो ये बी अगर रजिस्टर्ड है तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, आपको 10 रिवाइज इनवॉइस देने पड़ेंगे। ओके, अगर बी अनरजिस्टर्ड है तो ही आप ये प्रोविजन का बेनिफिट ले सकते हो। हाउएवर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज a consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipients if the value of supply exceeds 55. लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ इंटरस्टेट सप्लाई किया है इंटरवेनिंग पीरियड में और किसी एक को जो सप्लाई किया है उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होता है, तो दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू इशू कंसोलिडेटेड। लेकिन आपको वहां पे क्या करना है, सेपरेट रिवाइज इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंडीशन है देखो, एक तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है एंड रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, कितने भी वैल्यू का इनवॉइस हो आप कंसोलिडेटेड दे सकते हैं। ओके, अगर इंट्रास्टेट है और 2.5 लाख से ज्यादा है तो कंसोलिडेटेड नहीं दे सकते, अदरवाइज रिवाइज इनवॉइस की कंसेप्ट समझ में आ गई सबको, कैसे कब एप्लीकेबल होता है। इसमें देखो अगर आप आफ्टर 30 डेज अगर अप्लाई करते हो तो ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं है। ओके, ना रिवाइज टैक्स इनवॉइस पे क्या डिटेल मेंशन करें, ये सब कॉमन लिस्ट बार बार पढ़ने वाले हैं, तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या है सभी वो जो डिटेल्स हमने मेंशन किए थे वही थे, लेकिन सिर्फ इसमें एक चेंज है कि सीरियल नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, तो आपने जो ओरिजिनल पहले इनवॉइस इसे किया था जिसके अगेंस्ट आप रिवाइज इनवॉइस दे रहे हो, वो ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर सिर्फ आपको एडिशनल लिखना है। ठीक है, अब ये इनवॉइस के बारे में कहा, और अगर कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट हमको जीएसटी में देखने हैं, ठीक है, तो उनमें से एक है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इनमें से क्या है, बिल ऑफ सप्लाई। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऐसे बताया कि अगर मैं क्या करता हूँ, टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ सेपरेटली कस्टमर से, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि जहाँ पर आई एम नॉट कलेक्टिंग एनी टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। तो कब हो सकता है, एक जब मेरा गुड्स और सर्विस एग्जम्प्टेड है जीएसटी में, तो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या उसके ऊपर, नहीं होगा। या एप्लीकेबल नहीं है तो कैन आई कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, आई कैन नॉट कलेक्ट। या फिर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करता हूँ, पेइंग टैक्स। ओके, तो ऐसा कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में बोलेंगे नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट सैटरडे में। कंपोजिशन स्कीम में ऐसा है कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करते, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट वन, उसको खुद के पॉकेट से टैक्स पे करना है क्योंकि कंसेशन कुछ एडिशनल उसको दिए। ओके, तो अगर आप कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो या फिर अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, तो यू आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। ओके, सो इफ यू आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स, देन यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। तो उस जगह पे आपको देना है बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? उस जगह पे आपको क्या देना है, टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई। A registered person supplying exempted goods or services or both, or paying tax under provisions of section 10, ये जो है ना पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, इसका मतलब कंपोजिशन टैक्स, सेक्शन 10 इज कंपोजिशन स्कीम। ओके, shall issue instead of a tax invoice a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be explained। तो उसको क्या देना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। ओके, अंडरस्टूड। अब बिल ऑफ सप्लाई में डिटेल्स क्या क्या है, अगेन सेम रामायण बात फिर से आने वाला। सिर्फ इसमें चेंज क्या है, इसमें टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए टैक्स का रेट, जीएसटी का अमाउंट, ये सब इसमें नहीं है। तो टू दैट एक्सटेंट वो चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट जो वो है वो वैसे की वैसे सेम रह जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ये क्या है? ओके, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, सपोज मेरा ग्रोसरी शॉप है, आप मेरी दुकान में आते हो, आपने क्या किया, यू हैव परचेज 10 किलोज के 10 kg ऑफ राइस फ्रॉम माय शॉप। ओके, एंड यू आल्सो परचेज सम बिस्किट्स फ्रॉम माय शॉप। ओके, तो ऐसा है कि राइस मतलब जो ये होता है ग्रेन्स रहते हैं, दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो जीएसटी तो है नहीं, बिस्किट के ऊपर तो 18% की जीएसटी है। अब देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा, अब ये दो आइटम अगर मेरे दुकान से परचेज करते हो, तो ऐसा है कि राइस तो टैक्सेबल है नहीं, वो तो एग्जम्प्टेड है, तो राइस के लिए तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मुझे बिल ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। बिस्किट के लिए मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी,
क्या हो गया, जब एक ही कस्टमर को मुझे दो डॉक्यूमेंट देने पड़े, फिर बाद में साक्षात्कार हुआ जैसे रिक्वायरमेंट को, अरे बाबा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये 46A ये क्या होता है पता है, देखो रूल 46 है, उसमें 47 भी है। 46 है मतलब ऐसे बीच में डाला हुआ है कहीं कहीं, हम जैसे करते हैं ना ऐसे एरो निकाल के इसके ऊपर सेम। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगेन, ओके, आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स टुगेदर सेल कर रहे हो या तरीके से, तो आप सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इसी तरह, इसमें भी देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये दे सकते, रजिस्टर्ड पर्सन को है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको दो डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, ऐसा रूल नहीं है, प्रैक्टिकली कोई नहीं है, प्रैक्टिकली एक ही डॉक्यूमेंट में सब जाता है। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मतलब दोनों का 1+1 किया है, और ठीक है, मतलब इसमें एक ही कि अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे तो ही ये आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अदर डॉक्यूमेंट इज रिसीट वाउचर, क्या बोलते हैं, रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर बोले तो रिसीट पैसे मिलने के बाद रिसीट देते हैं ना, हमको ही है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन shall on receipt of an advance payment with respect to supply of goods or services both issue a receipt voucher or any other document containing such particulars as may describe evidencing list of payment। तो आपको एडवांस पेमेंट मिलता है, एट दैट टाइम यू हैव टू इशू रिसीट वाउचर। तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई में आपको याद है कि गुड्स के केस में अगर मुझे एडवांस मिलता है तो मुझे जीएसटी नहीं भरना है, ठीक है, तो गुड्स के लिए तो रिसीट वाउचर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको सर्विस के अगेंस्ट एडवांस मिलता है तो आपको एडवांस पे जीएसटी पे करना है। तो whenever you issue advance to against supply service, you have to issue this document receipt voucher। क्यों? क्योंकि आपको एडवांस मिलता है तभी आपको टैक्स देना है, तो रिसिपिएंट के पास प्रूफ होना चाहिए ना कि इतने जो पैसे दिए उनमें से कुछ अमाउंट टैक्स करके तो हुआ, इसलिए रिसीट वाउचर देना है। अगर रिसीट वाउचर पे डॉक्यूमेंट्स क्या, वही सेम, सेम नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला ये 10 12 5 7 बार तो ये रिपीट होने वाला, वही सब डिटेल्स इसमें मेंशन करने हैं। ओके, अब देखो एक प्रॉब्लम ऐसा है कि रिसीट के टाइम पे ना एक ऐसा ये हो सकता है प्रॉब्लम कि आई डोंट नो द रेट ऑफ टैक्स। देखो ऐसा है कि मान लो आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर सपोज मैं किसी कंपनी का हाउस कीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, ओके, और मान लो मैं ए बी सी और डी ये 4 टाइप के सर्विसेज उसको देता हूँ। ए को जीएसटी का रेट है 5%, बी को है 12%, सी को है 18%, डी को है 28%। ओके, और ये डिफरेंट टाइप के सर्विसेज जैसे नीड होगा वैसे मुझे देना है, और उस कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए एडवांस पे कर दिए। मुझे तो पता नहीं है ना कि बाद में बिलिंग होगा तो 5% वाला कितना होगा, 12 वाला कितना होगा, 18 वाला कितना, ये तो पता नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि अगर आपको जब एडवांस मिलता है और आपको रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, तो आप उस पर 18% फ्लैट रेट पे टैक्स पे करिए। तो फ्लैट 18% पे मैं उस एडवांस पे टैक्स पे कर दूंगा, बाद में जब एक्चुअल बिलिंग होगा तब मैं कंपेयर करूंगा कि इतना टैक्स आ रहा है उसमें से इतना भरा है तो बचा हुआ मुझे भरना होगा। इफ यू पेड मोर देन यू कैन एडजस्ट, यू कैन एडजस्ट दैट। तो मैं ऐसा करके आपका पैसा उतना जमा रहता है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, अगर वो कम रहेगा तो इतना एडजस्ट होकर बचा हुआ पड़ा रहेगा वहीं पे, तो बात के पेमेंट में आप ठीक है करते हैं। एंड इफ द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिन्ड, क्यों? ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो कंपनी का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कंपनी का ऑफिस महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है, और तीनों जगह पे मुझे सर्विस देना है, और वो सभी सर्विस को मिलके मुझे 5 लाख रुपए एडवांस देना है। तो आई डोंट नो, आई एम रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, वो जो महाराष्ट्र में सर्विस दूंगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा, गुजरात दिल्ली को सर्विस दूंगा उसके ऊपर आईजीएसटी आएगा। तो आज मुझे पता नहीं ना कि गुजरात का बिलिंग कितने का होने वाला है, या दिल्ली का कितने का होने वाला है, या महाराष्ट्र का कितने का होने वाला है। तो मैं कैसे डिटरमाइन करूँ वो एडवांस पे जो टैक्स भरना है मुझे, तो मुझे आईजीएसटी तो भरना पड़ेगा या जीएसटी भरना पड़ेगा, विच टैक्स आई शुड पे, दे आर सेइंग कि द सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट रेट। अब उसको इंटरेस्ट सप्लाई से ट्रीट करो, पूरे इस पे आईजीएसटी पे करो। इसका रीजन मैं आपको आईटीसी के चैप्टर में आता है, ओके, आईटीसी या फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस के चैप्टर है हमारे, वो जब हम डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम आई विल टेल यू व्हाई टीसीडी क्रेडिट, ओके, तो समझ में आ गया रिसीट वाउचर क्या है। नेक्स्ट इज रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है, देखो रिसीट वाउचर कब इशू किया मैंने, मुझे सर्विस के अगेंस्ट एडवांस मिल गया है, ओके, एडवांस मिल गया तो मैंने उसको ये इशू कर दिया क्या,
रिसीट वाउचर इशू किया, बाद में अगर कुछ रीजन की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और मैं उसको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जो भी पैसे उसने मुझे दिए थे वो मैंने उसको वापस कर दिया, रिफंडेड बैक। जब ऐसा एडवांस मिलता है और सप्लाई हो नहीं पाता उसके अगेंस्ट, और जो एडवांस मिला है वो पैसे तब मैं उसको वापस देता हूँ, तो मुझे रिफंड वाउचर मिलता है। देखो, where on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or service, or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in person thereof. A said registered person may issue to the person who had made payment a refund voucher. Okay, against such payment. तो रिसीट वाउचर के अगेंस्ट मुझे क्या देना है? रिफंड वाउचर देना, अगर मैं पैसे वापस देता हूँ और देता हूँ। ओके, रिफंड वाउचर के डिटेल्स नेक्स्ट टिपिकल डॉक्यूमेंट सेल्फ इनवॉइस। ऐसा होता है क्या? देखिए, मैं खुद ही खुद पे नाम पे इनवॉइस इशू कर सकता हूँ क्या? जीएसटी में कर सकता हूँ। देखो प्रोविजन क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, मतलब कौन सा? आरसीएम। ओके, 9(3) और 9(4) का मतलब आरसीएम। shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of issue of goods or service. So 9(3) या 9(4) के अंडर रिवर्स चार्ज की लायबल हुआ, ऐसा कुछ मैंने परचेस किया है और अगर मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है, in that case I have to issue invoice on his behalf on my own name, self invoice. Okay, understood? देखो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो मुझे इनवॉइस नहीं देना है। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस ओनली आई हैव टू इशू द सेल्फ इनवॉइस। तो सेल्फ इनवॉइस टैक्स इनवॉइस जैसे ही रहेगा, डिटेल सब जो लिस्ट है वही इससे आने वाला है। नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? A registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or 4 of section 9, मतलब अगेन आरसीएम वाला, ओके, shall issue payment voucher at the time of making payment to the supplier। तो अगर मैं आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल हूँ 9(3) या 9(4) के अंदर, और उस सप्लायर को मैं जब पेमेंट करूंगा, एट दैट टाइम आई हैव टू इशू पेमेंट। ओके, अंडरस्टूड? प्रैक्टिकल स्पीकिंग ये पेमेंट वाउचर रिसीट वाउचर कोई नहीं है। टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई तो होता है कभी जगह, ये समझ में आ गया? पेमेंट वाउचर कब देना है? आगे पेमेंट वाउचर का डिटेल्स तो फ्रीक्वेंट सही नहीं है, वही सेम कथा फिर से। ओके, तो ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज डिलीवरी चलन। रूल 65 के अंदर बोला है, क्या बोलते हैं उसको? डिलीवरी चलन। देखो, अगर ऐसा है, मैं टैक्स इनवॉइस कब इशू करता हूँ? व्हेनेवर आई एम मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो लेट्स लिमिट अवर डिस्कशन फॉर गुड्स ओनली। यहाँ पे डिलीवरी चलन जो है वो गुड्स के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है। देखो, ऐसा है कि मैं अगर लेट से पुणे में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है और चाकन के किसी पार्टी को मैं कुछ गुड्स बेचने वाला हूँ, ठीक है, तो जब मैं गुड्स यहाँ से वहां मूव करूंगा तो मैं इनवॉइस इशू करूंगा। कौन सा? टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या होता है कि सपोज मेरी फैक्ट्री है वो पुणे में है और मेरी फैक्ट्री में कोई तो मशीन है, वो मशीन और कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, मुझे रिपेयर करवाना। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मशीन रिपेयर करने वाला जो पर्सन है, सपोज दैट पर्सन इज लोकेटेड एट चिंचवड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुणे से मेरे फैक्ट्री से वो जो कुछ मशीन है वो मेरे गाड़ी पे लोड करता हूँ और वो गाड़ी लेके यहाँ से मैं चिंचवड तक माल लेके जाता है और मशीन लेके जाता हूँ, रिपेयर करके वापस लाता हूँ। ओके, अब देखो दो ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है। जब मैं चाकन के पार्टी को कोई तो माल भेज रहा हूँ, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। ओके, तो उसको लेकर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। लेकिन ये जो दूसरा है, मशीन चिंचवड को लेके जाना और वापस लेना, ये क्या है? ये मशीन में सप्लाई कर रहा हूँ क्या? उसको नहीं कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ रिपेयर के लिए लेके जा रहा हूँ और वापस लाने वाला हूँ। तो ये मूवमेंट जो हो रही है, इस मूवमेंट के लिए कैन आई इशू टैक्स इनवॉइस? आई कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। एंड देयर इज रूल ऑफ जीएसटी कि विदाउट डॉक्यूमेंट कोड आपका कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं है। मतलब हर एक गुड्स की मूवमेंट सप्लाई के लिए होती है ऐसा नहीं है। देयर आर सम मूवमेंट्स ऑफ गुड्स व्हिच आर फॉर अदर देन सप्लाई, राइट?
ऐसे केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इश्यू करने हैं? ऐसे केस में आपको डिलीवरी चलन इश्यू करना है, डीसी या डिलीवरी चलन इश्यू करना है. ओके, delivery challan can be issued in following cases. First, supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known. अगर आप लिक्विड गैस का सप्लाई करते हो तो जब वो फील होता है तो पता नहीं चलता ना कितना क्वांटिटी है. जब वहाँ पे आप एक्चुअली अनलोड करोगे एट दैट टाइम ओनली यू विल अंडरस्टैंड कितना क्वांटिटी है मिलता है. ओके, तो आप जब गुड्स भेजते हो तो इनवॉइस नहीं दे सकते ना. तो उस टाइम पे आप क्या करो, डिलीवरी चलन इशू करो, डिलीवरी चलन पे गुड्स की मूवमेंट करो. जब एक्चुअल गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तो गैस तो थोड़ा तो निकल जाता है ना इवापोरेशन से, कितना क्वांटिटी एक्चुअल डिलीवर होता है उस क्वांटिटी का आप बिलिंग. या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, जो अभी मैंने बोला ना, मैं मशीन यहाँ से रिपेयरिंग के लिए लेके जा रहा हूँ और वापस ला रहा हूँ. मतलब जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, शेड्यूल 2 हमने डिस्कस किया था, बोला था किसी दूसरे के गुड्स पे प्रोसेस करना है तो जॉब वर्क. तो जॉब वर्क मतलब मेरे मशीन से वो रिपेयरिंग करने वाला है, मशीन वहां से लेके जाता हूँ वापस लाता हूँ. इस मूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी चलन आपका इशू कर सकते हो. ओके, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय ऑफ सप्लाई. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, किसी भी रीजन के लिए अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑफ डिलीवरी चलन. ओके, प्लीज टेक एग्जांपल. देखो, सपोज आई एम हैविंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे क्लाइंट के केस में देखा कि द पर्सन इज हैविंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ बालाजी वेफर. बालाजी वेफर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप. उसके केस में कैसे होता है ना कि उसका लाइन सेल्स रहता है. लाइन सेल्स पता है आपको क्या होता है? लाइन सेल्स का मतलब बहुत सारे कस्टमर्स जो है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही बार मेरे गाड़ी में माल लोड करता हूँ और मैं पूरे मार्केट एरिया में राउंड लगाता हूँ. हर एक दुकान के सामने रुकने का, उसको चाहिए तो उतना क्वांटिटी निकाल के दे देंगे. तो इसको प्रॉब्लम क्या है, देखो, जब मैं टेम्पो में माल लोड करके मेरे गोडाउन से निकलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं इसमें से कितना सेल लेने वाला. सही है ना? तो मैं इनवॉइस इशू कर सकता हूँ क्या इसके लिए? नहीं कर सकता. तो मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी चलन निकाल के उस डिलीवरी चलन पे वो गुड्स लेके जाता हूँ हर एक दुकान में जहाँ पे डिलीवरी थे, एट दैट स्पॉट आई इशू द इनवॉइस. ओके, या फिर हमने सेल ऑन रिटर्न बेसिस का एग्जांपल देखा था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. इसमें क्या होता है, मैं आज गुड्स भेज रहा हूँ, जब कस्टमर अप्रूव करेगा तब मुझे पता चलेगा कि उसने कितना माल एक्सेप्ट किया. तो जब आज मैं गुड्स भेज रहा हूँ तो डू आई नो कि व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज गोइंग टू बी सोल्ड? आई डोंट नो. तो आई कैन नॉट इशू इनवॉइस. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी चलन इशू करता हूँ. ओके, ऑन द डिलीवरी चलन मैं गुड्स का मूवमेंट करता हूँ. बाद में जब एक्चुअल सेल होगा तो मैं उसका टैक्स इनवॉइस जो कुछ रहेगा वो इशू करूँगा. सो एक जनरल ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी वाला ये है डिलीवरी. नेक्स्ट इज गुड्स आर ट्रांसपोर्टिंग एसटीडी सीटीडी कंडीशन इन बैचेस ऑफ लॉट्स. तो पता है क्या होता है एसटीडी सीटीडी? क्या होता है पता है किसी को? एसटीडी का लॉन्ग फॉर्म है सेमी नॉकडाउन, सीटीडी का मतलब है कंप्लीट नॉकडाउन. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आप इकट्ठा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. विंड मिल्स पता है, बड़े बड़े होते हैं, मतलब आपने हाईवे पे देखा होगा, वो विंड मिल्स के जो पार्ट है वो एक गाड़ी से पूरा विंड मिल जा सकता है क्या? ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता ना. तो उसका जो मेन बॉडी का पार्ट होता है वो अलग से ट्रांसपोर्ट करना होता है. उसके जो विंग्स रहते हैं वो विंग्स मुझे अलग से ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हो. इसका मतलब आई एम सेलिंग विंड मिल, बट वो एज अ विंड मिल में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता. तो मुझे क्या करता है, वो सेमी नॉकडाउन करना पड़ता है, कंप्लीटली नॉकडाउन करना पड़ता है, पार्ट पार्ट सेपरेट करने पड़ते हैं और फिर उसको मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. ओके, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है. अगर मैं ऐसा नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो ऐसा है कि वो जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट करने के मुझे 4 बड़े ट्रेलर्स लगने वाले हैं. तो देखा होगा ना, बहुत बड़ी गाड़ी रहती है विंड मिल के पार्ट जब ट्रांसपोर्ट होता है. ऐसा होता है कि वो 3 विंड मिल के विंग्स के लिए 3 गाड़ियाँ और चौथे वो बॉडी के पार्ट के लिए 1 गाड़ी, तो 4 गाड़ी से मुझे वो पूरा विंड मिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है. आई एम सेलिंग विंड मिल ओनली, तो मेरा तो इनवॉइस एक ही रहेगा, लेकिन मेरी व्हीकल से चार्ज आएगी. उसमें ऐसा कि कुछ व्हीकल आज जर्नी स्टार्ट करेगी, कुछ कल करेगी, कैसे व्हीकल अवेलेबल होंगे उस हिसाब से. तो ऐसे अगर सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन या बैचेस या लॉट्स में आपके गुड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वहां पे भी आप डिलीवरी चलन यूज कर सकते हो. कैसे वो बोल रहे हैं कि द सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट.
फर्स्ट कंसाइनमेंट जो आपका डिस्कस था, तो पूरे विंडमिल के लिए पूरा का पूरा इनवॉइस सबसे पहले क्या करोगे, इशू कर दो. देन द सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चलन फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस. 4 गाड़ी अगर जा रही है तो 4 डिलीवरी चलन बनाओ, हर एक गाड़ी में जो माल रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन डिलीवरी चलन पे लिखो और उसके ऊपर जो आपने पहले सबसे पहले इनवॉइस इशू किया है उसका रेफरेंस दे. ओके, देन copies of corresponding delivery challenge shall accompany each consignment along with duly certified copy of the invoice. तो मेरा जो इनवॉइस मैंने इशू किया है उसका सर्टिफाइड कॉपी और हर एक गाड़ी का डिलीवरी चलन गाड़ी के साथ जाएगा. एंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट. फिर लास्ट वाला कंसाइनमेंट जाएगा. एट दैट टाइम ओनली आई विल गिव द ओरिजिनल इनवॉइस टू द रिसिपिएंट. इस केस में भी अब अगर सीकेडी कंडीशन में आप कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑफ डिलीवरी चलन. Okay, and goods sent within state or interstate for sale on approval basis, right? ये तो हमने डिस्कस किया. और artwork sent by artist to galleries for exhibition. अगर सपोज आई एम अ पेंटर और मैं किसी एग्जीबिशन में मेरे पेंटिंग लेके जा रहा हूँ तो एग्जीबिशन में जब सेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं. कि मेरे प्लेस ऑफ रेसिडेंस से एग्जीबिशन के बेसिस जब मैं गुड्स लेके जाता हूँ तो कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना. इनवॉइस तो नहीं दे सकता है लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है सेल कितना होगा. तो उस केस में व्हाट आई कैन यूज दिस ऑप्शन ऑफ डिलीवरी चलन. ओके, अंडरस्टूड. डिलीवरी चलन उसमें डिटेल्स क्या है, ये भी ऐसे ट्रिप्लिकेट में देना है. ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लिकेट फॉर कंसाइनी. ओके, अंडरस्टूड. डिलीवरी चलन के ऊपर डिटेल्स क्या, जो नॉर्मल डिटेल्स होते हैं वही रहते हैं, अलग चीज होते हैं. So this is regarding, देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हमने. वी डिस्कस टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, सेल्फ इनवॉइस, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर. इसके बाद डिलीवरी चेक. 8 टाइप के डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए. अब अनदर 2, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. ओके, क्रेडिट नोट क्या होता है बताइए किसी को. वो इशू क्रेडिट नोट, सप्लायर और कस्टमर. सप्लायर इशू, राइट, कब इशू करता है. When he issues credit note, गुड्स रिटर्न आता है अगर कस्टमर से, कस्टमर हैज रिटर्न बैक गुड्स टू द सप्लायर, सेल्स रिटर्न, इन दैट केस वी कैन इशू क्रेडिट नोट. तो सेम एनालॉजी ये तूने दिए. सेक्शन 34, 32, 33 स्किप किया है वो आ जाएगा बाद में. सेक्शन 34 क्रेडिट नोट कब इशू करना है. ठीक है, देखो 3 सिनेरियोज है जहां पे आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो. फर्स्ट, where one or more tax invoices have been issued for suppliers any goods or service or both, and the taxable value of or tax charged in the tax invoice is found to exceed the taxable value of tax payable in respect of purchase. मतलब कब, पहला सिनेरियो, कब क्रेडिट नोट इशू करना है. जिस रेट पे आपको बिलिंग करना था या जिस रेट से आपको जीएसटी चार्ज करना था, आपने उससे ज्यादा रेट से बिलिंग किया है, ज्यादा जीएसटी चार्ज किया. मतलब देखो, अगर 100 रुपीज से बिलिंग करना था मैंने 110 रुपए से कर दिया, तो फिर 18% से जीएसटी लगाना था मैंने 28% से लगा. उस केस में वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 10 रुपए का या फिर जीएसटी का, उस अमाउंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ. ओके, सेकंड, वेयर द गुड्स सप्लाई आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट. मैंने गुड्स सप्लाई किया और रिसिपिएंट ने वो रिटर्न भेज दी, सेल्स रिटर्न. या फिर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई आर फाउंड टू बी डिफिशिएंट, खराब हो जाता है, सर्विस डिफिशिएंट हो जाता है. In that case also, that supplier is allowed to issue credit note. The registered person who has supplied such goods or service or both may issue to the recipient one or more credit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed. So in that case, we can issue credit note. देखो 3 सिचुएशन. एक, क्या मैंने जितना टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू चार्ज करना चाहिए था उससे ज्यादा चार्ज की, तो 100 रुपए की जगह पे मैंने 110 रुपए चार्ज किए, तो मैं 10 रुपए के लिए क्रेडिट नोट दे दूंगा. या फिर मैंने आज गुड्स किसी को सेल किए हैं, वो कल मुझे रिटर्न आते हैं, या फिर मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किए हैं, वो डिफिशिएंट हो जाते हैं. इन दिस 3 केसेस आई कैन इशू क्रेडिट नोट. इससे एक सिंपल लॉजिक, कब क्रेडिट नोट इशू करनी है. देखो 110 रुपए से बिलिंग किया और 10 रुपए का क्रेडिट नोट दिया, मतलब मेरा सेल हो गया 110 का 100. या फिर गुड्स भेजे थे वापस आ गए, फिर सेल्स कम हो गए. या फिर सेम फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड ऑल दैट. ओके,
तो जहां पे भी मुझे सेल कम करना है मेरा, तो मुझे क्रेडिट नोट देगी, सिंपल। ओके, जब भी मुझे क्या करना है, मेरा सेल्स कम करना है, तो एट दैट टाइम आई हैव टू इशू व्हाट डॉक्यूमेंट, क्रेडिट नोट। समझ में आ गया? ओके, नाउ इसमें कहता है कि देयर इज टाइम लिमिट फॉर डिक्लेयर। ये जीएसटी का मतलब डिपार्टमेंट का बहुत ऐसा, मतलब दे लव दिस प्रोविजन, टाइम लिमिट, हर एक चीज के लिए टाइम लिमिट है। तो आपको क्रेडिट नोट कब देना है, इसके लिए आपके पास टाइम लिमिट है। इस टाइम लिमिट के बाद आप क्रेडिट नोट नहीं इशू करते। व्हाट इज द टाइम लिमिट? देखो कि क्रेडिट नोट शुड बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द मंथ इन विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जिस डेट को आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ के रिटर्न में जीएसटी से आपको रिटर्न, मतलब जीएसटी के रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट डिक्लेयर करना, बट नॉट लेटर दैट। देखो मैंने अगर 16 मार्च को इनवॉइस क्रेडिट नोट इशू किया तो मार्च के रिटर्न में मेरा वो क्रेडिट नोट डिक्लेयर हो जाए। लेकिन अगर मैं मार्च के रिटर्न में भूल गया करने, then I can declare it in subsequent returns, but not later than earlier of 30th November following the end of financial year in which the supply is made, or the date of furnishing relevant annual return। तो मतलब देखो कि अगर मैंने लेट्स से मार्च में कुछ सप्लाई किया है, मैंने सपोज 10 मार्च को कुछ सप्लाई किया था और 16 मार्च को गुड्स रिटर्न आते हैं, इसके लिए मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूँ, लेकिन आई फॉरगॉट टू डिक्लेयर दैट क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अप्रैल में कर सकता हूँ, मई के मंथ में, सब्सिक्वेंट मंथ में कर सकता हूँ, अप टू 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल। ओके, 30 नवंबर 2024 के बाद में ये क्रेडिट नोट इशू नहीं। ओके, और डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब ऐसा है कि हर एक साल के लिए जीएसटी में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न के चैप्टर में बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिटर्न मार्च खत्म होने के बाद में फाइल करता हूँ, जब मेरे बुक्स फाइनलाइज हो जाते हैं उसके बाद। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कब तक डिक्लेयर कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करोगे वो डेट, इसमें से जो अर्लियर रहेगा उस डेट तक ही आप वो डिक्लेयर करोगे। इसका मतलब देखो कि सपोज 30 मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया 15 दिसंबर को नेक्स्ट ईयर, 15 दिसंबर 24 को, तो मैं 30th नवंबर के बाद डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एनुअल रिटर्न लेट से 30th जून को फाइल किया तो मैं 30th जून के बाद नहीं डिक्लेयर किया। तो इन दो डेट में से जो अर्लियर डेट है 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, इसमें जो अर्लियर डेट उस डेट तक ही आप ये क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड? देखो समझ में आ गया क्रेडिट नोट। इसके बिल्कुल अपोजिट है डेबिट नोट। डेबिट नोट बोले तो देखो जब मुझे सेल घटाना है तो मैं क्रेडिट नोट देता हूँ, जब सेल बढ़ाना है तो मैं डेबिट नोट देता हूँ। ऐसे में एक ही केस में हो सकता है कि कौन से केस में, मैंने अगर कम रेट से बिलिंग की तब या कम जीएसटी चार्ज किया, उल्टा होता है 28% लगाना था लेकिन मैंने 18% ही लगाया, या फिर 110 रुपए से बिलिंग करना है लेकिन मैंने 100 रुपए से ही कर दिया। ओके, तो इन दैट केस आई हैव टू इशू ये डॉक्यूमेंट डेबिट नोट। डेबिट नोट को जीएसटी में सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव वर्ड क्या है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or service or both. The tax and the taxable value or tax charge in respect in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply. The registered person who has supplied such goods or services or both shall issue one or more debit note to the recipient. ठीक है, सेल बढ़ाना है तो मैं डेबिट नोट दूंगा, घटाना है तो क्रेडिट नोट। अब इंटरेस्टिंगली देखो, डेबिट नोट इशू करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, 10 साल के बाद भी कर सकते। अगेन देखो ऐसे मैं फिर से लॉ कैसे ड्राफ्ट होता है, ये होती थिंक, जब मैं क्रेडिट नोट दे रहा हूँ तो मेरा सेल घट रहा है, अगर मेरा सेल कम होता है तो गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स भी कम होने वाला है, उसके लिए टाइम लिमिट है। जब मैं डेबिट नोट देता हूँ तो मेरा सेल बढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है, एट दैट टाइम देयर इज नो टाइम लिमिट, यू कैन ओके। क्रेडिट नोट डेबिट नोट समझ में आ गया। डिटेल्स क्या मेंशन करने हैं वही नया, एक नया है कि जिस इनवॉइस के अगेंस्ट आप वो क्रेडिट डेबिट नोट दे रहे हो ना, इस इनवॉइस का रेफरेंस तो आपको वहां पे ऐड करना है।
बाकी सब ये पता है आपको, ठीक है। रिगार्डिंग क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट। नाउ सेक्शन 32 जो स्किप किया था वो ये था, कोई भी सॉर्ट ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन, अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन shall not collect any in respect of any supplier goods or services worth any amount by a tax under this act. Okay, इसका मतलब क्या कि unless and until you are registered you are not authorized to collect tax, and no registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this act or this one. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड हो तो भी मनमानी नहीं कर सकते। जैसा टैक्स एक्ट में बोला है उसी रेट से और इसी मैनर में आपको वो जो टैक्स है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। ओके, सेक्शन 33 ये भी स्किप किया था, 31 के बाद डायरेक्ट 34 पे आएगी। इसमें ऐसा बोला कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ और where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice or any other like document the amount of tax which shall form part of the price of such supply. समझ आ गया क्या होता है? तो उसमें क्या बोला है देखो कि आपको आप जो डॉक्यूमेंट इशू करते हो टैक्स इनवॉइस हो या फिर जो उसमें अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया तो आपको प्रोमिनेंटली डिक्लेयर करना है, ठीक है। छिपा के कहते नहीं टीएनसी अप्लाई से तो पे इसमें लिखा रहता है, वैसा नहीं, आपको प्रोमिनेंटली वो डिक्लेयर करना है। इसका मतलब रिसिपिएंट शुड नो, रिसिपिएंट को पता रहना चाहिए कि मैंने कितना अमाउंट इसमें टैक्स के लिए पे किया है। ओके, देन देयर आर प्रोविजन फॉर ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग का थोड़ा समझ लो क्या होता है। मैंने आपको बोला था ना फेक जीएसटी का फ्रॉड लोगों ने किया, ओके, तो उसके ऊपर एक एज अ क्या मतलब उसके ऊपर एक जो डिटरेंट फैक्टर करके गवर्नमेंट ने ई-इनवॉइसिंग पर 15 इशू किया। व्हाट दे से कि अगर आपको ई-इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल होती है तो आपको जो आपका इनवॉइस है वो इनवॉइस ही गवर्नमेंट के पोर्टल से जनरेट करना है। मतलब आपका जो इनवॉइस है, इनवॉइस आप खुद से जनरेट करो, लेकिन यू अपलोड और यू फर्निश द डिटेल्स ऑफ दैट इनवॉइस ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, और उसके बाद उसको एक ई इनवॉइस नंबर जनरेट होता है, दैट इनवॉइस हैव टू बी जनरेटेड, दैट ई इनवॉइस नंबर हैज टू बी, उसको आईआरएन बोलते हैं, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, दैट यू हैव टू जनरेट। अंडरस्टूड? और ये सभी को एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। सबसे पहले ये एप्लीकेबल हो गया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। देखो कैसा, ई-इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी टैक्सपेयर whose aggregate turnover in any of the financial years from 17-18, सिर्फ एक साल में नहीं, 2020 में 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, किसी भी साल में अगर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ एक्सीड होता है तो मुझे 1 अक्टूबर 20 से ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया, वो रिड्यूस हो गया फ्रॉम 500 करोड़ टू 100 करोड़ फ्रॉम 1 जनवरी 21, सिर्फ 3 महीने में गवर्नमेंट नीचे 500 करोड़ से आ गया 100 करोड़। इसके बाद 50 करोड़ का लिमिट हो गया 1 अप्रैल 21 से, 10 करोड़ हो गया 1 अक्टूबर 23 से, और ये शायद आपके बुक में नहीं रहेगा। ओके, फ्रॉम 1 अगस्त 23 ई-इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल होता है? 2017-18 से किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, अगर आपका टर्नओवर क्या 5 करोड़ क्रॉस हुआ है तो आपको ई-इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। समझ में आ गया? ओके, तो मतलब देखो सिर्फ 3 साल के पीरियड में गवर्नमेंट ने जो लिमिट है 500 करोड़ के ऊपर वालों को था वो 5 करोड़ के ऊपर इतना लिमिट घटा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का फ्रॉड इसमें कैसे होता है कि भाई इनवॉइस जनरेट करता, तो गवर्नमेंट है लाइव इन्फॉर्मेशन कि कौन किसको कितने बिल भेज रहा है, कैसे क्या कर रहा है। और एक ई-वे बिल करके सिस्टम में आज नहीं होगा, मैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब हम जब बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो इनवॉइस पर ई-वे बिल और इनवॉइसिंग भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लिंक all with the FASTag of the vehicle. Government can live track the movement of goods from one place to another. मैं बताऊंगा उसके बाद। तो दिस इज इनवॉइसिंग, इसका मतलब आप जब आपको अगर इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आप इनवॉइस जनरेट करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप फर्निश करोगे और उसका एक 64 कैरेक्टर का नंबर इंटर होता है, बहुत बड़ा, आईआरएन बोलते हैं, वो आपके इनवॉइस
आपको जनरेट करना है, इनवॉइस प्रिंट करना है, उसका QR कोड भी जनरेट होता है, वो भी इनवॉइस मतलब QR कोड आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा ये जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अब देखो ये इनवॉइसिंग सिर्फ B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है, B2C सप्लाई के लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सिर्फ B2B एंड एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप डीमार्ट में जाते हो, डीमार्ट का टोटल पक्का 500 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उनको इनवॉइस एप्लीकेबल, क्योंकि सारा सेल तो B2C है उनका, B2C कुछ नहीं होता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं। तो B2C के लिए इनवॉइस आपको जनरेट करना है क्या, नहीं करना। ओके, सिर्फ B2B और एक्सपोर्ट के लिए करना है। देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक QR कोड, ये किनके लिए है, इनको इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, इनके लिए देखो ऑल B2C इनवॉइसेस, देखो ये स्पेसिफिकली B2C के लिए, B2B तो ऑलरेडी कवर हो गया अंडर इनवॉइसिंग। ओके, all B2C invoices issued by registered person whose aggregate turnover in any of the preceding financial year from 2018 onward exceeds 500 crore, ये भी सिर्फ एप्लीकेबल किसको है, 500 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर जाता है उसी को एप्लीकेबल है फॉर B2C सप्लाई। ओके, is are mandatorily required to have a dynamic QR code from 1st December 2020, white notification 14 of 2020, central date dated 21st March 2020। ओके, उसको क्या करना है, सभी B2C इनवॉइस पे ये डायनामिक QR कोड आपको ये करना है, मेंशन करना है। ओके, अब इस QR कोड में कौन कौन से डिटेल होना चाहिए, फर्स्ट सप्लायर GST नंबर, ओके, सप्लायर का UPI ID, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC बैंक अकाउंट से डिटेल, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट, ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, GST अमाउंट कितना है। ओके, एंड डायनामिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट करने के लिए मतलब जो QR कोड स्कैन करते हैं पेमेंट, तो वो सब डिटेल वो आपके डायनामिक QR कोड में होना जरूरी है। कौन से लोगों को, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 17-18 से किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा है, और B2C इनवॉइस पे ये आपको मेंशन करना जरूरी है। नहीं डायनामिक नाही, टाइमर वाला नाही, पेमेंट तो स्कॅन करून पेमेंट करता आलं पाहिजे। ओके, अब कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक QR कोड, कहाँ पे, डायनामिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इनवॉइस इशूड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सप्लायर, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, MBA। ओके, क्योंकि जो ये ऑलरेडी कंट्रोल एनवायरमेंट में काम करते हैं, इसलिए GTA अगर इनको एप्लीकेबल किया तो वो स्ट्राइक करेंगे। ओके, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगेन इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म टू मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, मल्टीप्लेक्स पिक्चर तो पूरा फिल्म तो B2C रहता है, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप OIDAR सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी आपके केस में ये आपको एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, एंड ये बोला था ना नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वो वाला तो ठीक है। अभी आपके सिलेबस में OIDAR को बहुत अलग अलग से प्रोविजन है, अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, एंड अनदर एक जो QR कोड का रिक्वायरमेंट है वो एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग इनवॉइसिंग। तो आज हमने ये डिस्कस 3 टॉपिक्स, राइट। इसको है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आपने आज डिस्कस किया, उसके बाद क्या डिस्कस किया, रजिस्ट्रेशन एंड देन टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। नेक्स्ट सैटरडे को इसी से रिलेटिंग एक ई-वे बिल का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट सैटरडे को, आज जो कोई भी प्रेजेंट नहीं है उनको बताओ कि नेक्स्ट सैटरडे का लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि हम ITC डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस फॉर आवर
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटीसी के लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है, एक भी मतलब पूरा दिन हमारा शायद जा सकता है आईटीसी डिस्कस करने के। ओके, नेक्स्ट सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे को लेक्चर मिस मत करो, ठीक है। आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, कल टेस्ट है, सॉल्व करो, बाद में हम मतलब आपको ये सभी से आंसर्स अपडेट कर दूंगी, ठीक है।